ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پلیز میری ہیلپ کریں، میں گاؤں سے پیپر دینے آئی تھی، میرا فون بھی بند ہو گیا۔ سہانا شہر پیپر دینے آئی تھی، لیکن واپسی پر ڈرائیور موسم خرابی کی وجہ سے آیا نہیں اور وہ پریشان سی سڑک پر کھڑی لفٹ مانگنے لگی کہ شہر میں رہتا شاہ نواز اپنے آبائی گاؤں دادی سے ملنے جا رہا تھا، سالوں سے اس کے نام پر بیٹھی کزن کو جواب دینے۔ تیز بارش کی وجہ سے رک گیا۔ کالج یونیفارم میں بارش میں بھیگی وہ بے داغ حسن والی لڑکی اسے پل بھر میں ہی متاثر کر گئی۔ آپ کو کہاں چھوڑ دوں؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کا کزن ہی ہے۔ میرے شوہر کے گھر چھوڑ دیں، وہ یہیں شہر میں ہی رہتے ہیں۔ اس نے بیگ سے ایڈریس نکال کر دیا۔ شاہ نواز لب بھینچ کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا کہ اچانک آنکھوں میں چمک آئی۔ اوئے مسٹر، تمیز سے، ایس پی کی بیوی ہوں میں۔ اپنی گھبراہٹ چھپاتی کیوٹ انداز میں وہ وارن کرنے لگی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یا اللہ، اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، اب میں کیا کروں گی؟ گھر کیسے جاؤں گی؟ دادی تو بہت پریشان ہو جائیں گی۔ سہانا نے روحانسی ہوتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے چہرے کی ہماہیاں اڑی ہوئی تھی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ گاؤں سے شہر پیپر دینے آئی تھی اور آج اس کا آخری پیپر تھا۔ وہ پیپر دے کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ بہت تیز بارش ہونے لگی۔ پل بھر میں ہی ہر طرف جل تھل کا سما ہو گیا تھا۔ اب تو کالج بھی بند ہو گیا تھا اور وہ یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ وہ مسلسل ڈرائیور کو فون کر رہی تھی، مگر بارش ہونے کی وجہ سے سگنل بھی نہیں مل رہے تھے۔ اتنی دیر میں اس کی فون کی بیٹری لو ہو گئی اور اس کا فون بند ہو گیا۔ وہ سڑک کنارے کھڑی بھیگنے لگی تھی۔ اللہ، پلیز ڈرائیور بابا کو مجھے لینے بھیج دیں، میں اس شہر میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو کسی کو جانتی تک نہیں ہوں، میں تو اس شہر میں کھو جاؤں گی۔ وہ پریشان سی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک درخت کی آڑ میں کھڑی تھی، مگر پھر بھی بارش اس کے پورے وجود کو بھگو رہی تھی۔ اب تو اس کو سردی بھی لگنے لگی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اسی اثنا میں اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ سہانا ڈر کر اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہٹی اور پریشان نظروں سے اس گاڑی کو دیکھنے لگی۔ شاہ نواز نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے کالج یونیفارم میں کھڑی اس لڑکی کو دیکھا تھا، جس کا حسن بے داغ تھا۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کے حسن سے بری طرح متاثر ہو گیا۔ اس نے آج صبح اٹھ کر یہ خیال بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کالج جانے والی ایک لڑکی سے متاثر ہوگا۔ آپ اتنی تیز بارش میں یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ شاہ نواز نے گردن نکال کر سوال کیا۔ سہانا نے تذبذب کی کیفیت میں اسے گھور کر دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس اجنبی سے مدد مانگے یا نہیں۔ دیکھیں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں صرف آپ کی مدد کرنے یہاں رکا ہوں۔ آپ کا اتنی تیز بارش میں یہاں کھڑے رہنا محفوظ نہیں ہے، شاہ نواز نے نرم لہجے میں سوال کیا۔ وہ آج سالوں بعد اپنے گاؤں، اپنی حویلی واپس جا رہا تھا۔ اس نے خود کو بہت مشکل سے اس بات کے لیے تیار کیا تھا۔ وہ آج کچھ اہم فیصلے کر کے اس حویلی جا رہا تھا۔ وہ زبردستی کے رشتے کو ختم کرنے جا رہا تھا جو سالوں پہلے زبردستی اس کے گلے کا ہار بنا دیا گیا تھا۔ میں گاؤں سے یہاں پیپر دینے آئی ہوں، میرا فون بھی بند ہو گیا، جس کی وجہ سے میں اپنے ڈرائیور بابا سے رابطہ نہیں کر پا رہی، سہانا نے پریشان سے لہجے میں بتایا۔ کیا آپ مجھے میرے گاؤں تک لفٹ دے سکتے ہیں؟ سہانا نے سوال کیا۔ آپ پلیز پہلے گاڑی میں آ کر بیٹھیں، اس طرح سے بھیگتی رہیں تو بیمار ہو جائیں گی، شاہ نواز نے نرم لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر سہانا نے تذبذب کی کیفیت میں اسے دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس اجنبی پر یقین کرے یا نہ کرے جو جانے کہاں سے اسی مدد کرنے کے لیے نازل ہو گیا تھا۔ آپ مجھ پر یقین کر سکتی ہیں، شاہ نواز جیسے اس کے دل کی بات سمجھ گیا تھا۔ سہانا جھجکتی ہوئی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سکون کی سانس بھری۔ شاہ نواز نے ہیٹر آن کر دیا تھا تو سہانا کو کچھ سکون کا احساس ہوا۔ آپ کو کہاں چھوڑ دوں مجھے پتہ بتا دیں،
मैं आपको वहीं ड्रॉप कर देता हूँ। शाहनवाज ने सुहाना के सभी चेहरे की तरफ देखते हुए नरम से लहजे में सवाल किया। मुझे मेरी हवेली जाना है। सुहाना ने उसे गांव का नाम बताया। वो इत्तेफाक से उसी गांव का नाम बता रही थी जहां वो जा रहा था, मगर अब इतनी तेज बारिश में वहां जाना मुमकिन नहीं था। बारिश बहुत तेज है, वहां जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। क्या इस शहर में आपका कोई जानने वाला या रिश्तेदार नहीं है? शाहनवाज ने सवाल किया, और उसका सवाल सुनकर सुहाना सोच में पड़ गई। ये बात तो तय थी कि वो इसी वक्त अपनी हवेली नहीं जा सकती, या कम से कम जब तक बारिश नहीं रुक जाती वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती थी। दादी ने मुझे मेरे शौहर के घर का एड्रेस दिया था कि अगर कभी शहर में कोई परेशानी हो तो मैं वहाँ चली जाऊँ। ऐसा करें, आप मुझे मेरे शौहर के घर छोड़ दें। सुहाना ने अपने बैग में से एक मुड़ा तुड़ा सा कागज़ निकालकर उसकी सिमत बढ़ा दिया। उसमें उसके शौहर का पता और फ़ोन नंबर भी दर्ज था। शाहनवाज ने उसके हाथ से वो कागज़ ले लिया और खोल कर देखा। उस कागज़ में उसके खुद के घर का पता और उसका ही फ़ोन नंबर दर्ज था। शाहनवाज ने लब भींचकर अपने बराबर में बैठी लड़की को देखा और एक ठंडी सांस हवा के सुपुर्द की। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और आंखों में चमक उभरी। ओए मिस्टर, तमीज़ से, मैं एक एसपी की बीवी हूँ। सुहाना अपनी घबराहट छुपाती क्यूट से अंदाज में उसे वार्न करने लगी थी। वो भी उसके इस तरह मुस्कुराने पर परेशान हो गई थी। उसके इस अंदाज पर शाहनवाज के चेहरे पर एक जानदार सी मुस्कुराहट आ गई। ठीक है मैडम, आपको आपके शौहर के घर ही छोड़ देते हैं। शाहनवाज ने गाड़ी को मोड़ते हुए गंभीर से लहजे में कहा, और सुहाना अपनी हथेलियां मसलती हुई परेशान सी बैठी सोच रही थी कि पता नहीं उसका शौहर उसे देखकर कैसा रद्द-ए-अमल देगा, जिसने पलटकर इतने सालों में एक भी बार उसकी खबर नहीं ली थी। तुम्हारा नाम क्या है? शाहनवाज ने गाड़ी की रफ्तार के तेज करते सवाल किया। मेरा नाम सुहाना है, सुहाना ने नरम लहजे में जवाब दिया। शाहनवाज ने कन अखियों से उसे देखा। वो जब उसे यहाँ छोड़कर आया था तो वो महज 13 साल की थी, और इतने साल बाद भी वो बेहद हसीन थी। और आपके शौहर का क्या नाम है? शाहनवाज ने अगला सवाल किया। मेरे शौहर का नाम शाहनवाज है, सुहाना ने बाहर देखते हुए बता दिया। वो लड़की उसे पहचान भी कैसे सकती थी? वो इन 6 सालों में कभी पलटकर वापस नहीं गया था। वो अपनी दादी से नाराज़ था, अपने माँ बाप से नाराज़ था। उन लोगों ने इसका निकाह ज़बरदस्ती एक 13 साला बच्ची से करवा दिया था, और वो हवेली छोड़कर शहर आ गया था। यहाँ वो एसपी बन गया था। उसकी भी ज़िद थी कि वो इस रिश्ते को ख़त्म करके ही रहेगा, जिसमें उसकी मर्ज़ी कभी शामिल ही नहीं थी। बहुत सी सोचें इस वक्त शाहनवाज को घेरे हुए थी। वो किस्मत के इस खेल से हैरान था कि वो आज कई सालों बाद लौटकर हवेली जा रहा था, और उसके सामने वही लड़की आकर खड़ी हो गई थी। कुछ देर बाद शाहनवाज ने गाड़ी एक छोटे से फूलों और बेलों से लदे हुए बंगले के सामने रोक दी। गेट पर बैठे चौकीदार ने फौरन ही उठकर दरवाज़ा खोला, और शाहनवाज अपनी गाड़ी को पोर्च में ले गया। सुहाना ने हैरानी से पलटकर पहले चौकीदार को देखा, जो अब दरवाज़ा बंद कर रहा था, और फिर शाहनवाज को देखा, जिसके चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। ये कैसा चौकीदार है जिसने बिना कुछ पूछे हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया? उसे तो काम से लाजमी निकालना चाहिए। सुहाना हैरत ज़दा सी थी। शाहनवाज ने गाड़ी रोककर पलटकर सुहाना को गौर से देखा। सुहाना कुछ परेशान सी बैठी थी। घबराहट उसके चेहरे पर वाज़िया हो रही थी। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान हो? शाहनवाज की खोजती निगाहें उसके सभी चेहरे पर टिकी हुई थी। परेशान तो होंगी ना, मैंने आज से पहले अपने शौहर को नहीं देखा। मैं तो भूल ही गई हूँ कि वो कैसे दिखते हैं। शाहना ने शाहनवाज की तरफ देखते हुए अपनी परेशानी बताई। शाहनवाज ने इस बात में सर हिला दिया। शाहनवाज गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अपनी जगह से उतरा और फिर घूमकर सुहाना की तरफ आया और सुहाना की जानिब के दरवाजे को खोला। वो भी झिझकती हुई गाड़ी से उतर गई। वो यहाँ तक तो आ गई थी, मगर अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। ये सोच सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था कि वो उस शख्स का सामना कैसे करेगी जिसने इतने सालों में एक भी बार
पलट कर उसकी खबर नहीं ली थी। घबराहट उसके चेहरे से अयां थी। बारिश अब भी हो रही थी। गाड़ी से बाहर निकलते ही वो दोनों एक बार फिर से बारिश में भीगने लगे। अगले ही पल शाहनवाज ने सुहाना की कलाई थामी और उसे अपने साथ लॉन पार करके घर की तरफ बढ़ा। सुहाना ने बौखलाकर उसे देखा। ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा। अगर मेरे शौहर ने मेरा हाथ ऐसे देख लिया तो आपकी जान ले लेंगे। सुहाना ने उसे धमकी दी थी, मगर उस धमकी का शाहनवाज पर कोई असर नहीं हुआ। उसने दरवाजे के पास जाकर सुहाना का हाथ छोड़ दिया और अपनी जेब से घर की चाबी निकालकर लॉक को खोला। सुहाना हैरान परेशान सी उसे देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा था। अगर ये उसके शौहर का घर था तो इस अजनबी के पास उसके शौहर के घर की चाबी कैसे आई? और अगर ये इस अजनबी का घर था तो बाहर शाहनवाज के नाम की तख्ती क्यों लगी थी? ये सब सोच सोच कर उसका दिमाग घूम गया था। शाहनवाज उसे लेकर घर में दाखिल हुआ। वो छोटा सा घर बेहद खूबसूरती और नफासत से सजा हुआ था। आप कौन हैं? सुहाना ने घूमते सर के साथ सवाल कर दिया। शाहनवाज के चेहरे पर एक अनदेखी मुस्कुराहट फैल गई थी। शाहनवाज, उसने इत्मीनान से इसके सामने खड़े होते अपने सीने पर हाथ बांधे उसे अपना नाम बताया। सुहाना को लगा कि पूरी दुनिया जैसे घूम सी गई है। वो हैरान परेशान नज़रों से शाहनवाज को देख रही थी। आज उसकी किस्मत शायद उसके साथ खेल रही थी। वो फटी फटी आंखों से अपने सामने खड़े शख्स को देख रही थी और उसका वजूद साकित सा हुआ था। आप शाहनवाज हैं? मतलब मेरे शौहर आप हैं? सुहाना ने हैरानी से आंखें फैलाए सवाल किया। शाहनवाज ने इस्बात में गर्दन हिला दी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे इस बात पर यकीन कर लूं? इतनी देर से मैं आपके साथ हूं, जब तो आपने मुझे नहीं बताया। सुहाना बेयकीन सी थी। उसकी बात सुनकर शाहनवाज ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और दादी का नंबर डायल किया। दूसरी जानिब से पहली ही बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। शाहनवाज, तुम अभी तक हवेली नहीं पहुंचे। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूं। तुमने मुझसे वादा किया था कि आज तुम ज़रूर हवेली आओगे। इस बार भी तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। दादी की भीगी हुई आवाज़ फ़ोन के स्पीकर में से उभरी और सुहाना ने सांस रोककर फ़ोन को देखा। उसे ना ही अपनी आंखों पर यकीन आ रहा था और ना ही अपनी समातों पर यकीन आ रहा था। दादी, शहर में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसीलिए मेरा हवेली आना मुमकिन नहीं है, शाहनवाज ने नरम से लहजे में बताया। शाहनवाज की बात सुनकर दादी को यकदम ही सुहाना का ख्याल आया था। शाहनवाज, आज सुहाना शहर आई थी, उसका पेपर था, मगर अब तक वो हवेली लौट कर नहीं आई। ना ही ड्राइवर का फ़ोन लग रहा है और ना ही उसका लग रहा है। मैं तो परेशान हो रही हूँ, दादी ने परेशान से लहजे में कहा था। दादी, सुहाना मेरे साथ है, शाहनवाज ने सुहाना के सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखते हुए भारी लहजे में कहा। और उसकी बात सुनकर दादी को हैरानी से ज़्यादा खुशी हुई थी। किस्मत उन दोनों को इस तरह से मिला देगी ये तो सोचा ही नहीं था। आप सुहाना से बात करें। शाहनवाज ने फ़ोन सुहाना की तरफ बढ़ा दिया। सुहाना ने कांपते हाथों से फ़ोन थामा। दादी, सुहाना की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। सुहाना, तुम ठीक हो ना? शाहनवाज ने बताया वहाँ शहर में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तुम घबराना नहीं। दादी ने सुहाना को तसल्ली दी थी। मैं तो तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी, अब मेरे दिल को सुकून मिल गया। तुम शाहनवाज के साथ ही हवेली आ जाना। दादी ने सुहाना को हिदायत दी थी और सुहाना कुछ बोल ही ना सकी। कुछ देर बाद दादी ने फ़ोन काट दिया। सुहाना, तुम जाकर चेंज कर लो, तुम्हारा पूरा यूनिफॉर्म भीग गया है। अगर तुम इसी तरह से रही तो बीमार हो जाओगी। शाहनवाज ने उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए एक नज़र उसके भीगे हुए वजूद पर डालते कहा। उसकी आवाज़ सुनकर सुहाना होश में आई। मेरे पास कपड़े नहीं हैं, सुहाना ने लरसते लहजे में बताया। ऐसा करो, तुम मेरे कपड़े पहन लो, शाहनवाज ने आइडिया पेश किया और वापस पलटकर सामने बने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया। मैंने कपड़े निकालकर बेड पर रख दिए हैं, जाओ फ्रेश हो जाओ।
تمہاری شکل دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ تم بیمار پڑنے والی ہو۔ شاہ نواز نے فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ سہانا اب تک اس جھٹکے سے نہیں نکل سکی تھی۔ وہ غائب دماغی سے اسبات میں سر ہلاتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر نکلی تو اس کے جسم پر شاہ نواز کے کپڑے تھے۔ وہ اس پر بہت بڑے اور کھلے تھے۔ وہ اس وقت شاہ نواز کی سفید رنگ کی شرٹ اور بلیک کلر کے ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ وہ کمرہ یقیناً شاہ نواز کا کمرہ تھا۔ کمرہ سادگی اور خوبصورتی کا امتزاج تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے سہانا نے خود کو غور سے دیکھا۔ وہ شاہ نواز کے کپڑوں میں چھپ سی گئی تھی۔ اس نے اپنی کمر کی خم تک پھیلے گیلے بالوں میں کنگا کیا اور انہیں کمر پر کھلا چھوڑ دیا۔ کچھ دیر بعد شاہ نواز نے کمرے کا دروازہ نوک کیا تو سہانا اپنے خیالوں سے باہر آئی اور کمرے کا لاک کھولا۔ کھانا تیار ہے، آ جاؤ، شاہ نواز نے اسے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اور سہانا اسبات میں سر ہلاتی ہوئی باہر آ گئی، جبکہ شاہ نواز کی نظریں سہانا پر سے ہٹنے سے انکاری ہو گئی تھیں۔ وہ خود بھی اپنی کیفیت میں بری طرح سے جھنجھلایا تھا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی نرم پڑ رہا تھا۔ سہانا لاؤنج میں آئی تو لاؤنج سے ملحقہ کچن کے ساتھ رکھی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا رکھا تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی ٹیبل کی طرف آ گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد اٹھ رہا تھا۔ وہ صبح بغیر کچھ بھی کھائے پیے گھر سے نکلی تھی اور اب شام کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے ایک نوالا تک نہیں کھایا تھا۔ بیٹھو، شاہ نواز نے سنجیدگی سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے سامنے پلیٹ رکھ دی۔ سہانا خاموشی سے سر جھکائے بیٹھ گئی۔ شاہ نواز نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دل و دماغ میں ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ وہ خود بھی اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا، جبکہ سہانا ہنوز ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ نواز نے اس کی پلیٹ میں کھانا ڈال کر پلیٹ اس کی طرف کھسکائی۔ سہانا ہوش میں آئی اور اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہوئی اور چھوٹے چھوٹے نوالے لینے لگی، جبکہ شاہ نواز خاموشی سے کھانا کھاتے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس رشتے کو نہ ماننا اس کی ضد تھی اور وہ اپنی ضد پر اب بھی قائم تھا۔ یہ رشتہ زبردستی اس کی مرضی کے خلاف ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ 6 سال تک اپنی حویلی سے دور رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے ڈائیورس پیپرز تک تیار کروا لیے تھے کہ وہ کسی بھی صورت اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ مگر اب سہانا کو دیکھ کر اس کا دل ڈگمگا رہا تھا، مگر اس نے اپنے دل کو بری طرح سے ڈپٹا۔ تم کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کر لو، مجھے ویسے بھی کسی کام سے جانا ہے، بارش رک جائے پھر ہم حویلی کے لیے نکلتے ہیں، شاہ نواز نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سہانا نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ سچ سامنے آنے کے بعد ان دونوں کے درمیان ایک اندیکھی دیوار قائم ہو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی سہانا وہاں سے غائب تھی۔ وہاں اب ایک کنفیوز اور نروس سی سہانا موجود تھی۔ وہ شاہ نواز کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی، مگر شاہ نواز کا لہجہ اس سے اس قدر اجنبیت بھرا تھا کہ اس کا دل بہت بری طرح خائف ہوا تھا۔ شاہ نواز گھر سے جا چکا تھا۔ سہانا نے ٹیبل پر سے برتن سمیٹے اور کچن میں چلی آئی۔ پورا کچن بے حد صاف ستھرا تھا۔ سہانا نے برتن دھو کر ریک میں لگائے اور کچن سے باہر آ گئی۔ اب بارش کچھ ہلکی ہو گئی تھی۔ سہانا نے گھوم پھر کر پورے گھر کا جائزہ لیا۔ گھر چھوٹا تھا مگر بے حد خوبصورت تھا۔ نیچے ایک چھوٹا سا لاؤنج اور 2 کمرے موجود تھے اور ڈرائنگ روم موجود تھا، جبکہ وہ اوپری منزل پر نہیں گئی تھی۔ شاید شاہ نواز کا ڈیرا نیچے کے پورشن میں ہی تھا۔ مسلسل بارش میں بھیگنے کی وجہ سے سہانا کو اپنے جسم میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا اور اسے بخار بھی لگ رہا تھا۔ بارش اب کچھ حد تک ہلکی ہو گئی تھی۔ سہانا کو اس طرح سے شاہ نواز کے بیڈ روم میں جا کر آرام کرنا کچھ مناسب نہیں لگا، اسی لیے وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اسے نزلے اور زکام کی شدت نے گھیر لیا۔ آج کا بارش میں بھیگنا اسے بہت مہنگا پڑ رہا تھا۔ وہ وہیں صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے پورے جسم میں درد اٹھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں اس کی نظر صوفے کے پاس پڑے ایک کاغذ پر پڑی، جو یقیناً کسی فائل سے نکل کر وہاں گر پڑا تھا۔ سہانا نے یوں ہی وہ کاغذ اٹھا کر دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ
डाइवोर्स पेपर्स थे। अगर उसमें सुहाना और शाहनवाज का नाम ना लिखा होता तो सुहाना कभी भी इस बात पर यकीन ना करती। उसका दिल कई टुकड़ों में टूट कर बटा। इसीलिए शाहनवाज इतने सालों बाद लौटकर हवेली आ रहा था, ताकि उसे डाइवोर्स देकर इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर सके। सुहाना की आंखें भीगने लगी। उसे अब शाहनवाज के सर्द रवैये का मतलब समझ आ गया। सुहाना ने बचपन से अपने नाम के साथ सिर्फ शाहनवाज का नाम सुना था। वो जैसे इसकी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बन गया था। सुहाना महज 13 साल की थी जब उसका निकाह शाहनवाज से हुआ था। ये निकाह दादा जान की फरमाइश पर हुआ था। उन दिनों दादा जान की तबीयत बहुत ख़राब थी और उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि शाहनवाज और सुहाना का निकाह कर दिया जाए। शाहनवाज इस रिश्ते पर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सुहाना उससे 10 साल छोटी थी और फिर उसकी उम्र भी महज 13 बरस थी। वो कैसे एक बच्ची से निकाह कर सकता था? मगर इस वक्त उसके इनकार को कोई अहमियत नहीं दी गई और ज़बरदस्ती उन दोनों का निकाह कर दिया गया। निकाह के 1 हफ्ते बाद ही दादा जान का इंतकाल हो गया था और पूरी हवेली में शोक का समा फैल गया था। शाहनवाज दादा जान के इंतकाल के बाद शहर आ गया और यहाँ आकर अपने कैरियर की नई शुरुआत की। वो एक कामयाब एसपी बन गया था, मगर आज तक उसने इस निकाह को कबूल नहीं किया था। वो इस रिश्ते को ख़त्म करना उसकी ज़िद बन गया था और वो अपनी ज़िद का बेहद पक्का था। सुहाना ने जब होश संभाला तो उसने हमेशा अपने नाम के साथ शाहनवाज का नाम सुना था। शाहनवाज का नाम सुनते ही उसकी धड़कनें एकदम अलग होकर धड़कने लगती थी। वो इसका शौहर था। वो उससे मोहब्बत करती थी और उसी का इंतज़ार करती थी कि एक दिन वो आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर अब उसे अंदाज़ा हुआ कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा था, बल्कि बिगड़ रहा था। जब उसका शाहनवाज के साथ निकाह हुआ था, उसे तो निकाह के असल मायने भी मालूम नहीं थे। उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ शाहनवाज को ही सोचा था। उसके साथ ही ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे। वो कैसे उससे मुंह मोड़ सकता था? आंसू रवानी से सुहाना की आंखों से बह रहे थे। चेहरे का रंग जर्द पड़ता जा रहा था। बुखार की शिद्दत भी बढ़ती जा रही थी। रो रो कर उसकी हालत बुरी हो गई। बारिश रुक चुकी थी और माहौल में हब्स बढ़ गया था और सुहाना के वजूद में भी घुटन लम्हा बलम्हा बढ़ती जा रही थी। जिस रिश्ते को लेकर उसने हजारों सपने सजा रखे थे, वो रिश्ता एक ही झटके में चकनाचूर हो गया। सुहाना की हालत बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि रोते रोते उस पर नींद बेहोशी की कैफियत तारी होने लगी। वो बैठे बैठे कब बेहोश हुई उसे मालूम ही नहीं हो सका, मगर उसके हाथ में सख्ती से वो पेपर दबा हुआ था जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई थी। शाहनवाज घर लौटा तो रात हो गई थी। बारिश भी रुक गई थी। माहौल में छाई हब्स और घुटन भी काफ़ी हद तक कम हो गई थी। वो गाड़ी पार्क करके लाउंज में दाखिल हुआ, मगर सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो परेशान सा होकर सुहाना की जानिब बढ़ा, जो बेहोश सोफे पर पड़ी थी। शाहनवाज ने उसे आहिस्तगी से सीधा किया और उसका चेहरा थपथपाया। सुहाना, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। वो परेशानी से उसे पुकार रहा था, मगर सुहाना मुकम्मल तौर पर बेहोश थी। उसे अपने इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। शाहनवाज ने सुहाना के माथे पर हाथ लगाया तो वो बुरी तरह से बुखार में तप रही थी। उसका बुखार इस कदर तेज़ था कि शाहनवाज को अपना हाथ जलता हुआ महसूस हुआ। वो सुहाना को अपने बाजुओं में भरे अपने कमरे में लाया और उसे नरमी से अपने बेड पर लेटा दिया। सुहाना का नाजुक सा वजूद अपनी बाहों में उठाना उसके लिए मुश्किल हरगिज़ भी नहीं था। सुहाना को बेड पर लेटाते उसकी नज़र सुहाना के हाथ में पकड़े पेपर की तरफ गई और शाहनवाज ने उसके हाथ से पेपर लिया और उसे खोल कर देखा तो वो बहुत बुरी तरह परेशान हो गया। जाने कब फाइल में से पेपर निकलकर वहीं लाउंज में गिर गया था और उसे खबर ही ना हो सकी। और यकीनन वो पेपर सुहाना ने देख लिया था, जब भी उसकी ये हालत हो गई थी। शाहनवाज अपनी लापरवाही पर बहुत बुरी तरह पछताया। उसने फ़ौरन से डॉक्टर को कॉल की और कुछ देर बाद डॉक्टर उसके घर पर मौजूद था। उसने सुहाना को इंजेक्शन लगा दिया था और कुछ दवाइयाँ भी लिख दी थी।
और साथ ही उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने की सख्ती से ताकीद की थी कि अगर उसका बुखार नहीं उतरता तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ सकता था। डॉक्टर के जाने के बाद शाहनवाज ने सुहाना के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी और साथ ही उसके लिए सूप भी बनाने को रख दिया। कुछ देर बाद सुहाना को होश आ गया। उसने अपनी आंखें खोली तो शाहनवाज का चेहरा उसके सामने था। शाहनवाज को देखकर उसका दिल बेसाख्ता जल उठा। वो उसका हाथ झटक कर अपनी जगह पर बैठी। शाहनवाज ने उसकी हरकत पर अब्रू उचकाकर उसे देखा। वो बेड पर उसके सरहाने परेशान सा बैठा था। इतना तो उसे अंदाज़ा था कि सुहाना का रद्द अमल शदीद होगा, मगर इस कदर शदीद होगा उसे अंदाज़ा नहीं था। मुझे हवेली वापस जाना है, आप प्लीज़ ड्राइवर को फ़ोन कर दें, वो मुझे आकर ले जाए, सुहाना ने सपाट लहजे में कहा। शाहनवाज ने एक बार फिर से खिड़की से बाहर का मंजर देखा, जहां बारिश एक बार फिर से शुरू हो चुकी थी। बारिश रुक जाए फिर मैं खुद तुम्हें हवेली ले जाऊंगा। अभी जितनी तेज़ बारिश हो रही है हमारा जाना मुमकिन नहीं है। शाहनवाज ने नरम लहजे में उसे समझाने की कोशिश की। उसकी बात को सुनकर सुहाना ने पलटकर सुर्ख नज़रों से उसे देखा। चंद लम्हों के लिए दोनों की नज़रें टकराई और सुहाना के दिल में एक टीस सी उठी थी। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी हवेली। सुहाना अपने पैरों पर से कंबल हटाते हुए उठ बैठी। उसकी बात सुनकर शाहनवाज ने माथे पर बल डालकर उसे घूर कर देखा। क्या मतलब है तुम्हारा, कैसे जाओगी? शाहनवाज ने सुहाना का बाजू थामा और उसका रुख अपनी जानिब किया। ये आपका मसला नहीं है कि मैं कैसे जाऊंगी। सुहाना ने शाहनवाज से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए चटकते हुए लहजे में कहा। शाहनवाज ने ज़ब्त से उसे घूर कर देखा। उसे एक ही दिन में सुहाना के जाने कितने ही रूप देखने को मिले थे। इस वक्त तुम मेरे साथ मेरे घर में हो तो ये मेरा ही मसला है, शाहनवाज ने उसकी आंखों में झांकते हुए संजीदगी से जवाब दिया और सुहाना के चेहरे पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट आई। ओ प्लीज़, मेरी फिक्र का ड्रामा करना बंद करें। मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। आप मुझे तलाक देने हवेली वापस आ रहे थे। सुहाना की आंखों से आंसू मोतियों की सूरत टूटकर बिखरने लगे। शाहनवाज ने कोफ्त से अपनी आंखें मींच ली और लब भेंचे सुहाना को देखा। इस बात का उससे कोई ताल्लुक नहीं, शाहनवाज ने सपाट लहजे में कहा। क्या मतलब कोई ताल्लुक नहीं? जब आप मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहते हैं, तो आपकी बला से मैं कहीं भी जाऊं, जिंदा रहूं या मर जाऊं, आप फिक्र करने वाले कौन हैं? सुहाना ने उसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की। सुहाना, जिद करना बंद करो, तुम इस वक्त मेरी जिम्मेदारी हो। एक बार ये बारिश रुक जाए मैं तुम्हें खुद हवेली ले जाऊंगा। शाहनवाज ने इस बार नरम लहजे में उसे समझाने की कोशिश की और सुहाना ने सर झटका। मैं यहाँ आपके साथ नहीं रहूंगी, सुहाना ने रोंदे हुए लहजे में कहा। फिर कहाँ रहोगी? जाओ, जाकर लॉन में बैठ जाओ, मगर एक बात याद रखना, तुम इस घर की हदूद से बाहर नहीं निकल सकती, शाहनवाज ने सख्ती से उससे कहा और सुहाना ने तुंद नज़रों से घूर कर उसे देखा। जबकि शाहनवाज उसका ये रूप देखकर हैरान था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बीवी इस कदर मुंह जोर और ज़िद्दी होगी। वो तो हमेशा से यही सोचता रहा था कि वो कोई डरपोक सी और दब्बू किस्म की होगी, मगर जो लड़की उसके सामने खड़ी थी वो किसी तूफान से कम नहीं थी। तुम आराम करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम खाना खाते हैं, शाहनवाज ने उसका गाल थपथपाते हुए नरमी से कहा और अलमारी की तरफ बढ़ा। सुहाना पैर पटकती कमरे से बाहर चली गई। शाहनवाज फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जा ही रहा था जब उसकी नज़र लॉन की तरफ खुलने वाली खिड़की पर पड़ी और वो बुरी तरह से परेशान हुआ। ये लड़की शायद उसके ज़ब्त का इम्तहान लेने के लिए ही वहाँ मौजूद थी। उसने सख्ती से अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। सुहाना लॉन के बीचों बीच खड़ी बारिश में भीग रही थी। शाहनवाज का दिमाग बुरी तरह से खौल उठा। वो कपड़े बेड पर ही फेंक कर गुस्से से लॉन की तरफ बढ़ा। बाहर बारिश ज़ोरों शोर से जारी थी, यहाँ तक के सामने का हर मंजर धुंधला नजर आ रहा था और सुहाना बारिश में खड़ी भीग रही थी।
اس کا دل جل رہا تھا اور وہ چاہ کر بھی یہ سوچ نہیں پا رہی تھی جس رشتے کے انتظار میں اس نے اپنی زندگی کے 6 سال ضائع کیے تھے، اب وہ رشتہ اس طرح سے ختم ہونے والا تھا۔ شاہنواز کی دھندلی سی یادیں اس کے ذہن میں مقید تھی، مگر پھر بھی اس نے ہمیشہ اس سے محبت کی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا تو وہ اس سے محبت کیسے نہ کرتی؟ شاہنواز غصے میں سہانا کے سر پر جا کر کھڑا ہوا۔ تمہیں میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ ایک تو تمہیں اتنا تیز بخار ہے، اوپر سے تم یہاں بارش میں کھڑی بھیگ رہی ہو۔ شاہنواز نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ اس کے بے حد نزدیک کھڑا تھا، اتنا نزدیک کہ وہ اس کی بھاری سانسوں کی آواز بآسانی سن سکتی تھی۔ اس قدر نزدیکی پر سہانا کا دل ڈگمگا سا گیا۔ چھوڑے مجھے، کیا بدتمیزی ہے؟ اگلے ہی پل سہانا ہوش میں آئی اور اس سے اپنا بازو چھڑانا چاہا۔ شاہنواز نے اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب گھسیٹا، یہاں تک کہ وہ اس کے سینے سے آن لگی۔ سہانا کی دھڑکنیں تھم سی گئی تھیں۔ شاہنواز سر جھکائے سہانا کو دیکھ رہا تھا جو اس کی اس قدر نزدیکی پر بہت بے چین ہو گئی تھی۔ تم میری بات کیوں نہیں سن رہی سہانا؟ طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری، شاہنواز نے اسے اپنے نزدیک کرتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ ان دونوں کے درمیان بارش زور و شور سے برس رہی تھی، مگر اس قدر برستی بارش میں بھی وہ سہانا کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے سہانا نے شاہنواز کے سینے پر سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شاہنواز اپنی جگہ سن کھڑا رہ گیا۔ آپ مجھے چھوڑنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں جانتی ہوں ہم دونوں کا رشتہ زبردستی طے ہوا تھا۔ جس وقت میرا آپ سے نکاح ہوا اس وقت تو مجھے نکاح کا مطلب بھی معلوم نہیں تھا، مگر ان گزرے 6 سالوں میں نے ہر لمحہ آپ کے واپس آنے کی دعائیں مانگی ہیں، اور میری دعاؤں کا یہ صلہ ملا کہ آپ مجھے طلاق دینے والے ہیں۔ میں کیا کروں؟ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ شاہنواز کا وجود ساکت ہو گیا۔ اس نازک سی لڑکی کی یہ حالت اس کی وجہ سے ہوئی تھی۔ شاہنواز کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس نے ان 6 سالوں میں کبھی سہانا کے بارے میں نہیں سوچا تھا، وہ تو ہمیشہ اسے ایک 13 سالہ بچی تصور کرتا آیا تھا، مگر آج جو لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی وہ بے حد حسین دوشیزہ تھی، جس کے بے داغ حسن پر کوئی بھی اپنا دل لمحوں میں ہار سکتا تھا۔ شاہنواز کو پہلی بار اپنے فیصلے پر افسوس ہوا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی میرا خیال نہیں آیا؟ یہ نہیں سوچا کہ مجھ پر کیا گزرے گی، میں اس غم کو کیسے جھیل سکوں گی؟ وہ اب بھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ شاہنواز کی شرط اس نے اپنی مٹھی میں جکڑی ہوئی تھی۔ شاہنواز کے دل کو کچھ ہوا اور اس نے سہانا کو نرمی سے اپنے سینے سے الگ کیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ سہانا نے سرخ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے شاہنواز اس پر جھکا اور دھیرے دھیرے اس کے آنسو چننے لگا۔ سہانا سانس تک روک گئی۔ اسے اپنی بے خودی پر پچھتاوا ہوا تھا۔ وہ خود ہی تو شاہنواز کے اس قدر نزدیک گئی تھی، اور اب شاہنواز کی نزدیکی اس کی جان نکال رہی تھی۔ سہانا نے شاہنواز کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلا اور گہرے گہرے سانس بھرے۔ شاہنواز نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ سہانا پلٹ کر اندر چلی گئی اور شاہنواز ٹھنڈی سانس بھر کر وہیں کھڑا رہ گیا۔ اگلے روز دن بے حد روشن اور چمکدار تھا۔ شاہنواز کی گاڑی حویلی کی جانب رواں دواں تھی۔ سہانا اس کے برابر میں بیٹھی تھی، مگر وہ دونوں اپنی اپنی جگہ بالکل خاموش تھے۔ کل رات سے لے کر اب تک ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی کی چادر تنی ہوئی تھی۔ سہانا تو اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی، جبکہ شاہنواز وقتاً فوقتاً اس پر نظر ڈال لیا کرتا۔ کچھ دیر بعد شاہنواز کی گاڑی حویلی کے سامنے رکی۔ وہ آج پورے 6 سال بعد حویلی لوٹ کر واپس آیا تھا۔ اس کی ضد ٹوٹ گئی تھی اور اس نے محبت کے سامنے ہار مان لی تھی۔ وہ اس نازک سی لڑکی کا دل کسی صورت نہیں توڑ سکتا جس نے ان 6 سالوں میں اس سے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ شاہنواز نے اپنا رخ سہانا کی جانب کیا۔ سہانا نے کار کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر شاہنواز نے اب تک لاک نہیں کھولا تھا۔
सुहाना ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। दादी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, शाहनवाज ने नरम लहजे में कहा। किस बारे में? सुहाना ने सवाल किया। डाइवोर्स पेपर्स के बारे में, शाहनवाज ने संजीदगी से कहा और सुहाना का हलक खुश्क होने लगा। निचला लब बेदर्दी से रगड़ते उसने रोने पर काबू पाने की सही की। बड़ी मुश्किलों से उसने अपना सर जज्बात में हिलाया। शाहनवाज ने गाड़ी का लॉक खोला और सुहाना खामोशी से गाड़ी से उतर गई। शाहनवाज के वापस लौटने की वजह से जैसे हवेली में एक बार फिर से खुशियां लौट आई थीं। ताया जान, ताई जान और दादी बेइंतहा खुश थे। उन लोगों की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। दादी तो बार बार अपने पोते के सदके वारी जा रही थी। ताई जान ने शाहनवाज की पसंद के कई खाने बनाए थे और इस सब में सुहाना बिल्कुल खामोश थी। उसके अंदर बहुत कुछ बुझ सा गया था। वो जब से शहर से वापस आई थी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। वो अपने कमरे में अंधेरा किए लेटी हुई थी। वो खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रही थी और ये उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी उसे इस मुकाम पर लाकर खड़ा करेगी जहां से आगे सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था। उसे बार बार शाहनवाज का कहना अपने चेहरे पर महसूस हो रहा था। शाहनवाज की बेखुदी ने सुहाना को झंझोड़ कर रख दिया। वो तकिए में मुंह देकर फूट फूट कर रोई। जब शाहनवाज ने तलाक का फैसला कर ही लिया था तो इस तरह बेखुद होने की क्या जरूरत थी। रात के खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर सब जमा थे। पूरी महफिल में जश्न का समा था, जबकि सुहाना अभी भी अपने कमरे में कैद थी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर जाकर सबका सामना कर सके, और ख़ासकर उस शख्स का जिसने उसके दिल को इस कदर बेदर्दी से रौंदा था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सुहाना बाजी, आपको दादी जान बुला रही हैं और उन्होंने सख्ती से कहा है कि आपको अपने साथ ही लेकर आऊं। मुलाजमा ने सुहाना को दादी जान का पैगाम दिया। सुहाना बोझल दिल के साथ उठी। वो जानती थी कि वो मुलाजमा उसे लिए बगैर वहाँ से टलेगी नहीं। उसे अब भी बहुत तेज़ बुखार था। मुसलसल रोने की वजह से उसकी आंखें भी सूज चुकी थीं और चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसने हल्के गुलाबी रंग की शॉर्ट शर्ट और ट्राउज़र पहन रखा था और उस पर प्रिंटेड स्याह रंग का शिफॉन का दुपट्टा था। उसने एक नज़र आईने में खुद को देखा तो वो बरसों की बीमार नज़र आ रही थी। उसने अपने बालों को खुला ही छोड़ दिया था। वो नीचे आई तो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। शाहनवाज ने भी नज़रें उठाकर सुहाना को देखा। उसकी हालत देखकर इसके दिल को कुछ हुआ। सुहाना, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? आंखें सुर्ख हो रही हैं और चेहरा भी सूजा हुआ है। तुम्हारा बुखार नहीं उतरा? दादी जान ने सुहाना की हालत देखकर फिक्रमंदी से उसके सर पर हाथ रखा। उसका पूरा जिस्म जल रहा था। मैं ठीक हूँ दादी जान, सुहाना ने बुझे हुए लहजे में कहा, जबकि शाहनवाज की नज़रें सुहाना के चेहरे पर टिकी हुई थी। शाहनवाज को अच्छे से अंदाज़ा था कि उसकी ये हालत इसी की वजह से हो रही है। अच्छा, तुम ठीक से खाना खाओ, फिर मैं तुम्हें दवा देती हूँ, वो खाकर सो जाना, दादी जान ने फिक्रमंद लहजे में कहा तो सुहाना ने अज़बात में सर हिला दिया। शाहनवाज खाते हुए मुसलसल सुहाना को ही देख रहा था, मगर सुहाना ने एक बार भी नज़रें उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। वो सर झुकाए अपनी प्लेट में चम्मच घुमाती रही। उसका कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था और दादी जान फिक्रमंदी से उसे देख रही थी, जिसके चेहरे की रंगत 2 दिन में ही जड़ पड़ चुकी थी। सुहाना लॉन में रखी कुर्सी पर बैठी थी। आज बहुत दिनों बाद वो अपने कमरे से निकली थी। अब उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी और उसके चेहरे की सुर्खी लौट आई थी, मगर आंखों में जैसे वीरानी ने डेरा डाल लिया था। वो कुर्सी पर बैठी थी और दादी जान उसके सामने थी। सुहाना बेटा, अगर तुम्हारे और शाहनवाज के दरमियान कुछ बात हुई है तो तुम मुझे बता सकती हो। जब से तुम शहर से आई हो मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। अगर उसने कुछ कहा है तो मुझे बताओ, मैं उसको डांटूंगी। दादी जान ने नरमी से सुहाना से सवाल किया। उसने चौंक कर दादी जान की तरफ देखा।
वो हमेशा ही बिना कुछ कहे उसके दिल की बात समझ जाया करती थी, और आज भी वो समझ गई थी। सुहाना की आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी। उसी वक्त शाहनवाज की गाड़ी कार पोर्च में आकर रुकी और वो सीधा उन दोनों की तरफ आ गया। उसने दादी जान के सामने झुककर उनसे अपने सर पर हाथ रखवाया और गहरी नज़रों से सुहाना को देखा, जो उसके सामने आने से भी गुरेज़ां थी। सुहाना नज़रें झुकाए बैठी थी। शाहनवाज का शिद्दत से दिल किया कि वो एक बार तो उसकी तरफ देखे, मगर वो उससे बिल्कुल अनजान थी। शाहनवाज, तुमने मेरी बच्ची को ऐसा क्या कहा है? जब से ये शहर से वापस आई है, इसके चेहरे की रौनक ही ख़त्म हो गई है। दादी जान ने कड़ी नज़रों से शाहनवाज को देखते हुए सवाल किया, और सुहाना ने घबराकर दादी जान को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि दादी जान यूं अचानक शाहनवाज से सवाल कर लेंगी। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा दादी। आपकी लाडली को? शाहनवाज ने धीमे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और सुहाना का दिल जल उठा। लेकिन लगता है कि आपकी लाडली को मैं पसंद नहीं आया, शाहनवाज ने शरारत से कहा। सुहाना वहां से तेजी से उठी और अंदर चली गई। शाहनवाज ने उसकी झुकी हुई पलकों में टिके आंसुओं को देख लिया था। शाहनवाज वहीं दादी के पास ही बैठ गया। शाहनवाज, अब मैं तुम दोनों की खुशियां देखना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि आखिर हवेली में खुशियां आ जाएं। 6 साल पहले जिस रिश्ते की बुनियाद तुम्हारे दादा जान रख कर गए थे, मैं अब इस रिश्ते को मुकम्मल करना चाहती हूँ। दादी जान ने शाहनवाज का हाथ थामते हुए उसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, और शाहनवाज ने नरम नज़रों से उन्हें देखा। जैसे आपकी मर्जी दादी, मैं रुखसती के लिए तैयार हूँ। शाहनवाज ने मुस्कुराते हुए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। दादी जान को जैसे सारे जहान की खुशियाँ मिल गईं। उन्होंने बेसाख्ता शाहनवाज का माथा चूमा। शाहनवाज, सुहाना बहुत हसास बच्ची है, उसका हमेशा ख्याल रखना, दादी जान ने भीगे हुए लहजे में कहा। आप फिक्र मत करें दादी जान, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। शाहनवाज ने उनका हाथ थामते हुए उन्हें यकीन दिलाया। दादी जान नम आंखों से मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि वो सुहाना को सही हाथों में सौंप रही हैं। सुहाना पर यह खबर बिजली बनकर गिरी थी जब उसे मालूम हुआ कि उसकी और शाहनवाज की रुखसती की तारीख अगले महीने की तय कर दी गई है। वो कितनी ही देर अपनी जगह से हिल ना सकी। उसका पूरा वजूद जलजलों की जद में था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वो तेज़ी से अपनी जगह से उठी और शाहनवाज के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर के फ्लोर में आई तो सामने ही शाहनवाज का कमरा था। वो बिना सोचे समझे दरवाज़ा धकेलकर उसके कमरे में दाखिल हो गई, मगर अगले ही पल वो अपने उस फैसले पर बुरी तरह पछताई थी। शाहनवाज बगैर शर्ट के अपने कमरे में खड़ा था। उसने हैरानी से पलटकर सुहाना को देखा, जिसके कदम ज़मीन में जम गए थे। सुहाना ने पलटकर वहाँ से वापस जाना चाहा, मगर जब तक शाहनवाज उसके सर पर पहुँच गया था। वो इस वक्त महज ट्राउज़र में मलबूस था। उसका कसरती बदन बेहद नुमाया हो रहा था। सुहाना ने बेसाख्ता नज़रें चुरा ली जब तक शाहनवाज उसके सर पर पहुँच गया था। सुहाना ने तेज़ी से वापस पलटना चाहा, मगर शाहनवाज ने उसे बाजू से थामकर अपने सामने खड़ा किया। ऐसे कैसे वापस जा रही हो? पहली बार तो तुम मेरे कमरे में आई हो, अब मैं तुम्हें इतनी आराम से वापस तो नहीं जाने दे सकता। शाहनवाज ने एक झटके से उसे कमर से थामकर खुद से लगाया। सुहाना की सांसें थम सी गई। उसका चेहरा पल भर में ही सुर्ख हो गया। शाहनवाज की इस कदर नज़दीकी उसकी हालत को मज़ीद ख़राब कर रही थी। वैसे अगर तुम 1 महीना और इंतज़ार कर लेती तो दुल्हन बनकर ही मेरे कमरे में आ जाती, शाहनवाज ने लब दबाए शरारत से कहा। सुहाना ने उसकी बात सुनकर तड़प कर उसकी तरफ देखा। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? जब आप ये रिश्ता रखना ही नहीं चाहते तो आपने क्यों रुखसती के लिए हामी भरी है? सुहाना ने लरसते हुए लहजे में सवाल किया। शाहनवाज की नज़रें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। आपने तो डाइवोर्स पेपर्स भी बनवा लिए थे, फिर सब लोगों को सच्चाई क्यों नहीं बता रहे? किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? ना चाहते हुए भी सुहाना की आंखें छलक पड़ी।
प्लीज़, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अब मज़ीद मेरा तमाशा मत बनवाएं। अभी जाकर सबको सब कुछ सच बता दे। कल तक पूरे ख़ानदान को इस बात की खबर हो जाएगी कि हमारी रुखसती तय हो गई है। अगर उसके बाद आप मुझे तलाक देंगे तो ये मेरे लिए मज़ीद बुरा होगा। मैं जानती हूँ आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मगर मुझ पर रहम तो कर ही सकते हैं। सुहाना की आंखों से आंसू निकल आए। कह लिया तुमने जो कहना था? शाहनवाज ने गंभीर लहजे में सवाल किया और एक हाथ से उसके चेहरे पर आई लटों को उसके कान के पीछे अड़ाया, जबकि दूसरा हाथ अब भी सख्ती से उसकी नाजुक कमर पर टिका था। वो जानता था कि वो जैसे ही गिरफ्त ढीली करेगा वो उससे दूर हो जाएगी। आप क्यों मेरे साथ ये सब कर रहे हैं? वो जैसे थक गई थी। उसका नाजुक सा जिस्म उसकी गिरफ्त में हौले हौले लरज रहा था। मैं क्या कर रहा हूं तुम्हारे साथ? शाहनवाज ने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया और सुहाना का दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रो दे। ये शख्स क्यों उसे इस कदर आजमाने पर तुला था? मुझे तो खुद समझ नहीं आया कि ये सब मेरे साथ क्या हुआ। जब से तुम्हें देखा है मैं तो खुद को भी भूल बैठा हूँ। हाँ, जब तक मैं तुमसे मिला नहीं था, जब मैंने डाइवोर्स का फैसला किया था, मगर उन 2 दिनों में तुमने मेरे दिल की दुनिया ही उलट दी। शाहनवाज उसकी आंखों में झांकते हुए जब्त की कैफियत में कह रहा था। सुहाना सांस रोके उसकी बात सुन रही थी। मैं कैसे यकीन कर लूं? सुहाना ने नम लहजे में सवाल किया। ये रुखसती हो रही है, क्या ये बात काफ़ी नहीं? बाकी मैं रुखसती के बाद तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दूंगा। शाहनवाज ने धीमे से उसकी पलकों को अपने लबों से छुआ। सुहाना की सांसें उखड़ने लगी थीं। शाहनवाज, प्लीज़। सुहाना ने उसे रोकने की कोशिश की। तुम खुद भी नहीं जानती तुम जिस कदर हसीन हो, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया तुमसे मोहब्बत करने में। मैं इस बात के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तलाक के बारे में सोचा। शाहनवाज ने उसके गालों को अपनी उंगलियों से छूते हुए उसके कान में सरगोशी की थी। पता नहीं ये 1 महीना कैसे गुजरेगा और कब तुम इस कमरे में मेरी दुल्हन के रूप में आओगी। शाहनवाज ने बोझल लहजे में कहते हुए उसके गिर्द अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत कर दी। सुहाना ने अपनी आंखें बंद की थी। मोहब्बत उस पर मेहरबान हुई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।